चमत्कारों को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, शेयर करते हैं और दूसरों की जिंदगी में होता हुआ देखते हैं. In our daily lives, we experience, we sense, we see the miracles of Jesus and we share them with others. ये इसलिए है कि यीशु आज भी जिंदा है. It is true because Jesus is alive even today. पवित्र आत्मा आज भी काम करता है. Because the Holy Spirit is at work even now. पवित्र आत्मा आज भी जिंदगियों को बदलता, तब्दील करता है और चमत्कार करता है. Even today, in this day and age, the Holy Spirit works in lives and He transforms them. आज मैं आपके साथ बताना चाह रहा हूं कि लोग मसीहत और यीशु से जो है नफरत नहीं करते, लोग काउंटरफीट जो नकली मसीहत है उससे नफरत करते हैं. I want to tell you something today very specifically, that people of this world do not hate the Lord Jesus Christ. What they hate is fake Christianity and hypocrisy. क्योंकि आज दुनिया में बहुत सी चीजें नकली बन गई हैं. Because today there are many counterfeits in the world. आप कभी कभार जो है जो काउंटरफीट असली से भी ज्यादा जो है अच्छा लगने लग जाता है. You know, sometimes today the counterfeit is displayed so gloriously it looks better than the real thing. एक बार भाई अमित मुझे लागते बोले ये $50 किसी ने डाले हैं पर बिल्कुल सेम लग रहे हैं पर बैंक ने वापस कर दिए, बोले ये काउंटरफीट है, नकली है ये. You know, one day brother Amit came to me, he said, look at these $50. They look just like $50, but these are fake. Someone put in the offering, the bank has returned them to us. होता क्या है, बैंक वाले देते नहीं हो तो किसी ने ऐसे दे दिया है, पर होता क्या है कि ये एक जैसे नजर आते. प्रॉब्लम ये है. You know what the problem is? The bankers know the difference, but normally for all of us, they look the same. ये इनकी डिटेल, इनकी शक्ल, उनका सारा कुछ सब कुछ एक जैसा नजर आता. The details of the fake and the real are very similar. मैं इंडिया में कुछ 1-2 साल पहले गया, पैंडेमिक से पहले. जब When I went to India a couple years before the pandemic, तो मुझे कोई कलीसिया के लोग बता के कोई एक ब्रदर यंग मैन जो है मुझे आईफोन दिखा रहे, बोले आप क्या लेकर, ये सबसे अभी लेटेस्ट वाला मैं आपको बता रहा हूँ. a young man, a young brother in the church came to me, he showed me his iPhone. He said, what phone are you using? Look, I have the latest one. तो मैंने देखना शुरू किया. So I looked at it. फिर मैंने उसका बटन दबाया I pressed a few और buttons, उसको कुछ हुआ ही नहीं. but nothing happened. फिर मैंने उसको दबाया, And again I swiped फिर it मैं दूसरे आइकॉन को दबाया and I tapped another icon. और कभी वो इतना मजे से हिल नहीं रहा है वो. But you know, it wasn't moving as smoothly as it should. तो मुझे शक आने लगा. So I began to doubt मैंने कहा, it. ये आईफोन नहीं है. I told him, this is not an iPhone. बोले ये चाइनीज वाला डुप्लीकेट है ये. Well, he said to me, this is a Chinese duplicate देखने fake. में एक जैसे हैं ये. They look the same. घड़ियां, ज्वेलरी, सब चीजें इतनी आर्टिफिशियल आ गई हैं. Watches, jewelry, everything that's artificial and counterfeit. हाल ही में जिस दिन हमारा सेलिब्रेशन था तो किसी को एक कुछ कान वाला कोई चीज पहनने वाला बहनों का मिला. You know, just a few days ago, right here in this church, we had a celebration and someone found a piece of jewelry that sisters wear. जैसा सिस्टम है हमारा, मुझे फोटो खींच के भेज दी, पाजी साहब ये मिली ज्वेलरी, हमने संभाल कर रखी, जिस दिन आते हैं आपको हैंड ओवर कर देंगे. You know, as is our system, the person took a picture, sent it to the pastor and said, Pastor, we found this jewelry. Please, it's with me. It's safe. Whoever asks for it, tell them it's found. शशि के पास थी. शशि को It was with Shashi. हमारी बोर्ड मीटिंग थी, हम बैठे हुए थे पास. शशि मुझे बोले इससे पहले मैं भूल जाऊं, जब आप जाने से पहले मैंने आपको हैंड ओवर ज्वेलरी करनी है. So we were sitting down for the board meeting and Shashi says, before I forget, before the board meeting starts, he said, here's that piece of jewelry. I want to give it to you. हम थोड़ा बैठे चाय वाय पी रहे थे. You know, we were sitting around drinking tea. एक बहन आई वहाँ A पर, sister came there. जो हमारी चर्च की कलीसिया की हैं. You know, she's part of our church. बोले हमारे खानदान में सारे ज्वेलरी का काम करते, दिखाओ तो चेक चुके. बोले forget it, साहब नकली है ये. She said, I come from a home of jewelers. Show it to me. She goes, forget about it. It's a fake. हम बड़े संभाले जा रहे, फोटो खींच, व्हाट्सएप कर, ये कर, वो कर. बाद में पता चला वो नकली है ये. You know, we're being so careful with it, taking pictures, being responsible, putting on WhatsApp, making documentation, and it's a fake. ये जो नकली है धोखा है ये. You know what is fake, what is counterfeit is deception. और होता क्या कि बहुतेरे लोग जो हैं उनको असली समझ लेते हैं. And many people look at it and think it's the real thing. और धोखा इसलिए हो जाता है क्योंकि दिखने में उसके हाव भाव में सब कुछ एक जैसा है. And the reason they get deceived is because on the outside it looks just the same. आज क्रिश्चियनिटी में भी आपको काउंटरफीट जो डुप्लीकेट नकली सेवक मिल जाएंगे. Even in Christianity today, in this day and age, you will find fake, counterfeit,
duplicate ministers. और डुप्लीकेट जो है, गलत जो है, मिक्स हुई बाइबल है जिसमें से जो है वर्सेस उठा दिए गए हैं। And they have a duplicate, fake understanding of the Bible. They just take verses out of context. आपको डुप्लीकेट बिलीवर्स मिल जाएंगे। You will even find duplicate, counterfeit believers. चीजें इतनी नकली हैं कि लोग बहकावे में गुमराह हो जाते हैं और परेशान होकर उनको समझ में नहीं आता है असली कौन है, नकली कौन है, समझ में नहीं आता। Things are so deceiving that people are completely confused as to what is real and what is fake. एक बार किसी प्रॉफिट से बातचीत हो रही थी, हम बातचीत कर रहे थे, Once we were talking to a prophet, तो कहने लगे कि ये जो ऑयल की बोतल है ये $55 की हम देते हैं you know, he told us that we give this oil bottle for $55. और ये प्रार्थना करी हुई है और उसके साथ डोनेशन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। You know, this is this is oil that is prayed over, and then when you take it, you have to give a donation for इसलिए it. मुझे याद आ गया कि हाल ही में एक बहन प्रार्थना करवाने आई तो हमने प्रार्थना करी, उसके अंदर से बदबू निकली और जाने से पहले मैंने उनको अनॉइंटिंग ऑयल दिया तो बोले इसके कितना प्राइस है। You know, I remember because just a few days ago, few weeks ago, there was a sister here. She had demons. We prayed for her. She got delivered. I gave her a bottle of oil, and as she took it, she asked me, "How much do I pay for it?" तो मुझे लगा क्यों आप प्राइस को बोले, मैंने तो इसमें तेल ही डाला है और प्रार्थना करी, उसका कोई मुझे कुछ चार्ज नहीं लगा है, ये सब फ्री है, आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं? So I asked her, "Why are you asking about the cost? I mean, I just put oil in it, then I prayed over it, and it has been given to you. It doesn't cost me anything. Why are you asking the price?" फिर मुझे पता है लोग प्राइस देते हैं और प्राइस ऐसा लगाते हैं इन चीजों पर। Then I found out that there are people who actually put a price on the oil and they sell it, they merchandise it. इसलिए मैं खुलेआम ऑनलाइन, आप लोग वॉच करें, आप सुन रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि प्रार्थना का कोई प्राइस नहीं होता है। That's why openly, publicly, I'm declaring it even to those watching online and everyone here that we do not charge a fee or a price for prayer. जब आप प्रार्थना पर रेट लगा देंगे तो वो डुप्लीकेट है, नकली है, असली नहीं है। खुदावन यीशु के नाम पर करी हुई प्रार्थना का कोई प्राइस नहीं होता है। If there's a price associated, if there's a price tag with prayer, it is fake, it's duplicate, it's counterfeit. It has nothing to do with Jesus because prayer cannot be put a price on. अगर ऑयल पर, पानी पर, जल पर, चीजों पर, वस्तुओं पर प्रार्थना करने का कोई प्राइस लेता है, आप दूर हट जाए ऐसी प्रार्थना, ऐसी चीजों से, क्योंकि वो नकली है, वो असली नहीं है। खुदावन हमसे नहीं चाहता कि हम इन चीजों पर प्राइस If लगाएं। anyone takes money from you for objects like handkerchiefs and clothing and oil and anything, any object that they pray over and sell to you, run away from them. They are not from God, they are fake. क्योंकि डुप्लीकेट चीजें हूबहू सेम नजर आने लग गई हैं। Because these days the counterfeit is looking like the real thing. जो यीशु कहते कि अंत के दिनों में, मैथ्यू चैप्टर 24 में कहा गया है, Jesus says that in the last days, Matthew chapter 24, मत्ती के 24 अध्याय में, आप उसकी तीसरी, चौथी, पांचवी आयत को निकालें तो आपको थोड़ा विवरण समझ में आ जाएगा। यीशु की बात है और इसलिए मैं अपनी नहीं बता रहा हूं, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि यीशु क्या कह रहे हैं। एंड डेज की निशानियां हैं और उनमें से एक निशानी ये है। Matthew chapter 24, verse 3, 4, and 5. I want you to read it. These are not my words. These are the words of Jesus. I want you to hear them so you would understand what are the signs of the last days. वो कहते हैं कि अंत के दिनों में बहुतेरे लोग गुमराह हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि झूठे मसीही और झूठे जो हैं सेवक उठ जाएंगे और बहुतेरों को गुमराह कर देंगे। He says, in the last days, many false prophets will rise up and false messiahs will come forth. 24 की 11 में लिखा हुआ है। In chapter 24, verse 11, it says, 10वीं आयत में लिखा है कि बहुतों की प्रीत जो हैं, बहुते जो हैं ऑफेंड हो गए, एक दूसरे को ठोकर खिलाएंगे। and it says in Matthew 24:10, at that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. पहले तो उनको ठोकर लगेगी, फिर वो क्या करेंगे, विश्वासघात करेंगे, फिर जो हैं जो उसके वजह से बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे। First, there's a pathway, there's a series. It says, first they will turn away from the faith, then they will betray each other, then the false prophets will rise up. और ये क्या करेंगे, What will they do? बहुतेरों को गुमराह करेंगे, लिखा हुआ। They will deceive many people, it's written.
और लिखा है उसकी वजह से वर्ष 12 कहता है And that's why it says in verse 12. उस वजह से वो क्या पढ़े मैं चाहता हूँ आप पढ़े I want you to read it in your language. Chapter 24 of Matthew, verse 12. हाँ जी कोई भी जना पढ़े जरा मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े जब फॉल्स झूठे नबी झूठे सेवक उठेंगे तो बेदीनी मतलब के अधार्मिकता बुराई बढ़ जाएगी और कईयों की उस वजह से मोहब्बत क्या हो जाएगी ठंडी पड़ जाएगी When the false prophets will arise, it is written, because of the increase of wickedness, because of sinfulness, the love of many will grow cold. सब किससे शुरू हो रहा है Where is it starting? काउंटरफीट से नकली चीजों से From the fake deception. झूठे मसीही False Christians, झूठे नबी false prophets, झूठे सेवक false ministers. मत्ती की इंजील में आगे जाके लिखा है कि वो भेड़िए जो हैं भेड़ों के बीच में से ऐसे जो हैं प्रिटेंड करते हुए हिपोक्रेसी करते हुए दिखावा करते हुए आएंगे और कईयों को गुमराह करने लगेंगे And in the Gospel of Matthew, it is also written further that these wolves will come and deceive the sheep. बड़ी मुश्किल है This is a grave problem. हमें खुदावन से डिसर्नमेंट का परख का आत्मा जरूरी है इन दिनों में We need the spirit of discernment from God in these last days. क्योंकि अगर हम केयरफुल नहीं हुए डिसर्न नहीं किया परखा नहीं तो हम असली को नकली नकली को असली मान बैठेंगे Because if we did not discern, if we do not check, distinguish, then we'll think that the fake is real and the real is fake. तिमोथियस दूसरा तिमोथी 4 अध्याय निकाले जरा Hallelujah. Let's open 2 Timothy chapter 4. ये आज टीचिंग है आप ध्यान से सुनना है जरा Today you're receiving a teaching, so listen very carefully. चैप्टर 4 को निकालिएगा दूसरा तिमुथी उसके चौथा अध्याय. हाँ जी जैसे आप निकाल रहे हैं मैं हमारे पास लेटर ऑन प्रार्थना भी होगी हमारे बीच में एक खुदा के दास मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं बीच में स्किप ना कर दूँ पास्टर विल्सन सी डैलस टेक्सास से हमारे बीच में हैं तो पास्टर वुड यू स्टैंड वी वांट टू रिकॉग्नाइज यू ही इज अ powerful man of God all the way from Texas. Pastor Wilson Masih Dallas से हमारे बीच हैं. He's here from Dallas, Texas. Pastor Wilson Masih is a mighty man of God, and I want to take the opportunity while we're finding the scripture to introduce him and acknowledge him. बड़ी अभिषिक्त कलीसिया है डैलस टेक्सास में उनकी हमारे बीच में आकर प्रीच भी कर चुके हैं और वो ब्रदर डैनी शकुंतला के रिलेटिव्स हैं और बड़े पावरफुल गुड फ्रेंड ऑफ अस. In Dallas, Texas, he leads an anointed church. He's come here and preached amongst us in the past. He's also a relative to Brother Daniel Masih and Sister Shakuntala Masih. खुदावन के अच्छे अभिषिक्त सेवकों की फ्रेंडशिप बड़ी पावरफुल होती है and I cherish and I thank God for you man of God. You know, when we have friendships with God's servants, that's a powerful thing. और हम आपकी सराहना करते हैं भाई जी. Praise the Lord. आपसे रिश्ता जोड़ के बहुत खुशी है हमें. Praise God. चलिए निकाले मैं चाहता हूँ कि आप दूसरा तिमोथी 4 चैप्टर की और उसकी तीसरी आयत को कोई पढ़े बुलंद आवाज से जरा. Come with me to 2 Timothy chapter 4 verse 3 onwards. 2 Timothy 4:3. हाँ जी ऐसा समय आएगा हाँ जी लोग अच्छी शिक्षा खरा उपदेश जो है उनको अच्छा नहीं लगेगा. For the time will come when men will not put up with sound doctrine. हाँ जी आगे कानों की खुजली कहने का मायना है कि जो उनको सुनना पसंद है वैसी वो शिक्षा सुनना पसंद करेंगे. Because they want to hear what their ears are itching to hear, they will do this. हाँ जी आगे अपनी मर्जी से खुद ही सेवक ढूंढ लेंगे जो उनको कहानी सुननी है वैसी सुनाने वाले. By their own desire, they will gather around themselves teachers that they like. They will tell them the stories that they're wanting to ये hear. एंड टाइम्स अंत के दिनों की मुसीबत परेशानी जो पौलुस तीमुथियुस को लिख के कह रहा है ऐसा होने वाला है. ऐसे सेल्फ मेड ऐसे लोगों ने सेवक बना लेने हैं वो ऐसी कहानियां बताएंगे जो लोग सुनना पसंद करते हैं. In the end days, this is what Paul is describing to Timothy will happen. There will be deceiving prophets, deceiving teachers who will come and lead people astray by their teachings. आगे पढ़ी गया पांचवी उनको कहानियां सुनना है.
They just want to hear myths. उनको जो है काल्पनिक बातें सुनना है, They want to hear imaginary tales. उनको और ये जो है इधर उधर की बातें सुनना है, सही बाइबल की शिक्षा से वो जो है दूर हटते चले जाते हैं. They have nothing to do with sound doctrine, that's the teaching of the Bible, the Word of God. They want to hear all these अब tangential things. अब आगे क्या है उसका क्या, हमें क्या एक्शन क्या है? What is next? What is the action that we are called to? हाँ जी. पर तू सब बातों में कह रहा है सावधान रह. But you keep your head in all situations. Be alert. आपने सावधान रहना है. Keep your head. Be alert. यीशु भी कह चुके हैं अंत के दिनों में झूठे नबी उठ खड़े होंगे, पर आपने क्या रहना है? सावधान रहना है. Jesus also said in the last days there will be many false prophets, but what must you do? You must be watchful and alert. ऐसे जिसके मर्जी सिर सामने सिर नहीं आगे कर देना है. Don't just stretch forth your head and bow before anybody. हर कोई जो प्रॉफिट कहता है जरूरी नहीं हो प्रॉफिट हो. Everyone who claims to be a prophet need not be a prophet. एवरी शख्स जो अपने आप को कहता है कि मैं अपासल हूं, जरूरी नहीं कि अपासल हो. Everyone who calls himself a Rasul need not be a Rasul. और कोई भी शख्स कोई अपने आप को कुछ भी डिक्लेयर करे, जरूरी नहीं कि वो है. आपने बड़ा ध्यानपूर्वक रहना है, केयरफुल रहना है, ध्यान से सुनना है. कभी आप इंटरनेट खोलते कुछ भी निकल जाता है तो टाइटल की वजह से कुछ भी मत नहीं हेल कर लेना है आपने. So you must be very careful. If anyone claims to be anything, don't just listen to them. Sometimes you open the internet and whatever is there just jumps on you. केयरफुल लिखा हुआ है. Savdhan. हाँ, It's written. तीसरा चैप्टर इसी का तिमोथेयुस का, उसकी पहली आयत से पहली पंक्ति से पढ़े जरा. Come with me to the same book, chapter 3 of 1 Timothy, and let's read from verse 1 onwards. हाँ जी. हाँ जी, बड़े मुश्किल टाइम आ जाएगा. end Mark में. this, that there will be troublesome times in the last days. हाँ जी, आगे. क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, भीखमार, अभिमानी, निर्दय, माता-पिता की आज्ञा टालने वाले, पितृव्य, अपवित्र, दया रहित. हाँ जी, ये बड़ी इनकी सराहना करी है. You know, they've been praised here, these people. बड़ा इनका अप्रिशिएशन किया हुआ है. There's a lot of appreciation going on here. पांचवी पंक्ति प्रॉब्लम ये है उनके साथ. Let's find the problem. It's in verse 5. This ये is their problem. सारे उनके जो हैं गुण लिख के बताया कि ये ढींग शेकी मार ये सब करने वाले हैं. और उसकी प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम है पांचवी आयत में लिखा है. You know, these people are described as a good description that they are abusive, they are boastful, they are prideful, they are self-serving. But the problem that they have is revealed in verse 5. पांचवी पढ़िए जरा. ये भक्ति का भेष लिबास पहने हुए हैं. They're wearing a mask, they're wearing an outward covering, it's a form. प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें करने वाले हैं, पर आउटसाइड में वो क्या दिखाई देते हैं? भक्ति करने वाले, बड़े आत्मिक, बड़े रूहानी करके अपने आप को पेश The करते हैं. problem is deep inside they are all the evil things that are mentioned in the preceding verses. But on the outside, they appear to be devotional, they appear to be godly. आप बोलेंगे दुआ भी करते हैं भैया, You will tell about them, they even pray, हाथ भी उठाते हैं. they lift up their hands. अरे वो जो बड़ी बुलंद आवाज है उनकी जान, Oh, what a loud voice they have. और उनका जो ना बड़ी हम्बल बहुत है वो. Oh, look at them, she's so humble. जीसस बहुत डांटते थे फरीसियों से दूसरियों की, इसलिए क्योंकि वो बाहरी लिबास उनका जो है मजहबी था. और बाहरी लिबास उनका क्या था? वो धार्मिक
पर शक्ति नहीं है, but no power. बैंक वैल्यू नहीं देता उनको। The bank does not ascribe value to it. बाहरी तौर पर दिखने में सेम है, पर उनकी कोई वक़्त नहीं है, वैल्यू नहीं है, कोई उनका कुछ नहीं पाया जाता है। Outward, they look just the same, but they have no internal value and no worth. पावर नहीं है उनके अंदर, They have no power. वो चीज है नहीं जिसका वो दिखावा कर रहे हैं। They don't even have what they're trying to pretend to have. कितने तो ये कहते हैं कि मौजे चमत्कार होते ही नहीं है। And then there are those who say miracles and signs don't even happen anymore. इधर उधर सब जो हैं पावर आ जाएगी। You know, this is what some people think, that if they put up an outward show, the power will just come inside. खुदावन जो हैं उसको धोखा नहीं दिया जा सकता। You cannot deceive God. आप और मैं खुदा से परख की आत्मा में रहना है, पाकरूस से बने रहना है और वचन पर टिके रहना है। You and I need the spirit of discernment. We need to be filled with the Holy Spirit and filled with the Word of God. मत्ती की इंजील में खुदावन यीशु कहते हैं, उस दिन मुझे बहुतेरे कहेंगे हे प्रभु, पर मैं उन्हें कहूंगा कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। In Matthew 24, Jesus says, on that day many will say, Lord, Lord, but I will say to them, I do not know you. मत्ती 7 की 22 और 23 में लिखा है, वो मुझे प्रभु प्रभु खुदा खुदा कहेंगे, पर मैं उनसे कहूंगा जानता ही नहीं मैं तुम्हें। In the book of Matthew chapter 24 verse, I forget the verses, but it's written that 22-23 if Matthew 7:22-23, it's written, they will say to me, Lord, Lord, but I'll say, I never knew you. मैं जानता ही नहीं प्रभु कह रहे उनको। I don't even know who you are. वो कि उन्होंने बाहरी रूप तो खुदावन का धारण किया था, पर अंदरूनी तौर पर वो खाली थे, प्रभु उनको नहीं जानते हैं। Because on the outside they had a fake made believe form, but on the inside even the Lord did not know them. मैं चाहता हूं कि हवाला पढ़ें गलातियों की पत्री चैप्टर 1 उसकी 6 और 7 आयत को निकाले I जरा। want you to come with me to Galatians chapter 1 verse 6 and 7. Galatians 1, 6 and 7. बहुत जरूरी है कि हम इसे पढ़े जरा। It's very essential that we read this. हाँ जी, Galatians 1, 6 and 7. हाँ जी। ਮੈਂ ਅਚਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। हाँ जी आगे। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਕੁ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। पौलुस गलातिया की कलीसिया को लिखकर बता रहा है, मैं आपको सही वचन बताया है, जब मैं गया हूं पीछे से आकर गलत मलत कोई प्रचार कर दिया और तुम बहक गए हो, गुमराह हो गए। और जो है मैं तुम्हें कह रहा हूं, जो बाइबल की शिक्षा के बिना गलत मलत जो टीचिंग दे रहा हो और कोई तो शिक्षा है ही नहीं है, आपने बहकना नहीं है, टिके रहना है। बोला मुझे तो हैरत हो रही, तुम कैसे उन चीजों पर विश्वास करने लग गए। Paul says he's absolutely astonished that he taught the Galatians the true gospel. And after he left, someone came and replaced it with a fake gospel. And these believers so quickly believed in the fake gospel, it astonishes the apostle Paul. And he says, actually what they're preaching is not even the gospel. वो कानों में आके फुसफुसा देते हैं, They come and whisper in your ear. बहका देते हैं, गुमराह कर देते हैं। They lead you astray, they deceive you. पढ़े जरा आगे फिर क्या है। Read it further, what's written? हाँ जी, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਾਪ। बोले कि अगर कोई बाइबल से बाहर कोई भी वचन जो आपको सिखाना चाहे, चाहे वो आसमान से आया हो, फरिश्ता भी आया हो, सपना आया हो, भविष्यवाणी आया हो, श्रापित है, कर्स है, उस पर नहीं यकीन करना है, दूर रहना है, परे रहना है। बाइबल से हटकर जो है कोई और वचन नहीं है, आपने वचन पर ही बने रहना है। Paul is saying if anyone teaches you anything extra biblical, something outside the bounds of the word of God, whether they're an angel from heaven, no matter who they are, they will be eternally cursed. Do not follow anything, do not believe anything that's not found in the Bible. कई लोग प्रोफेसीज के पीछे बहुत जाते हैं।
You know, some people, they run after prophecies. मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ, खुदावन की प्रोफेसीज जो हैं बाइबल में लिखी है पूरी होती हैं। खुदावन आज भी भविष्यवाणियां करते हैं। I thank the Lord that all the prophecies of the Bible come to pass, and the Lord, according to His word, has proved to us that people still prophesy. खुदा ने कलीसिया को 5 प्रकार के सेवक दिए हैं। उसमें नबी भी हैं, रसूल भी हैं, टीचर भी हैं, पासबान भी है और इवेंजलिस्ट भी है और प्रॉफिट भी है। सारे खुदावन ने दिए हुए हैं। The Lord has blessed the church with the fivefold ministry of leaders. There is the prophet, the apostle, the teacher, the pastor, and the evangelist. और पर जब आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के अगर जो है प्रोफेसी के पीछे पड़ जाते हैं, But if you forget about all the others and run after prophecy, फिर गड़बड़ हो जाएगी। things will go wrong. लिखा ये 5 प्रकार के सेवक खुदा ने कहाँ दिए हैं? चर्च को दिए हुए हैं। It's written these 5 different ministers has been given by God to who? To the church. ताकि believers लोग, विश्वासी लोग ट्रेन किए जाएं और सेवकाई का काम हो। So that the believers, the body of Christ, may be trained for the ministry. पर होता क्या है? What happens otherwise? लोग सोचते मेरी प्रोफेसी का डो निकालो जरा प्रोफेसी। You know, people can say, come on, prophesy for me. वो फिर ऑफरिंग देंगे, शायद ऑफरिंग देके निकाल। Then they give you an offering, saying, maybe by offering I'll get a prophecy. आप आज इंटरनेट पे डालो $500, देखना आपको बड़ी प्रोफेसी देता है। Today, go on the internet, invest $500, you'll get a big prophecy. आपके पैसे डॉलर के हिसाब से प्रोफेसी निकलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। According to the size of your dollar, your money, you will get a prophecy, I'm telling you. आप $50 की भी ले सकते हैं, 50 की भी ले सकते हैं, आप 500 की भी ले सकते हैं। आप अपनी मनी के हिसाब से उतनी बड़ी प्रोफेसी मिल जाएगी। According to the money you want to give, $50, $100, $500, you're going to get a prophecy in the measure of it. फिर क्या होता है? Then what happens? इंसान को पंप अप कर दिया जाता है। They pump up the human being. आपको गाड़ी मिलने वाली है, You're going to get a car. बंगला मिलने वाला है, You're going to get a house. शादी होने वाली है, शादी, You're going to be married. वीजा लग जाने वाला है, You're going to get your visa. सिटीजनशिप आने वाली है, You'll get वो citizenship. मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। You'll get this, you'll get that. ये जितने पैसे दे के प्रोफेसी करवाते हैं, कोई प्रॉपर डांटता नहीं, उनको पता ये मेरे को पैसे नहीं देगा बाद में। You know, all these who pay money and get prophecies, no one checks them because even they know inside that the money won't come back to them. सारी प्रोफेसी किस रूप में होगी? All the prophecies in what form now? पैसा मिल जाएगा, Let's get the money. गाड़ी मिल जाएगी, Get the car. घर मिल जाएगा, Get the home. वीजा मिल जाएगा। Get the visa. यही प्रोफेसी है बस। These are all the prophecies now. कोई ये नहीं बोलेगा दारू छोड़ दे, Nobody will prophesy and say, stop drinking. वो मूर्ति निकाल दे, Take out that idol. उस काम से, बुरे काम से हट जा। Come out of that evil practice. उनको पता ही नहीं, वो दूर बैठे, आप दूर बैठे, उनको क्या लेना देना? आप उनको पैसे भेजो, वो उनको प्रोफेसी भेजेंगे आपको। They don't know who you are. They don't even know your issues. How can they tell you and correct you? All they know is you send the money, we send you a prophecy. Focus Jesus, not the prophet. यीशु पर केंद्र बिंदु लगाओ, नबी पर नहीं. बाइबल कहती है हमारे ईमान के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। The Bible says, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith. मैं इस पुलपिट से ऑलवेज कहता रहा हूँ, पास्टर, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, अपोस्टल आपको खुदा और आसमान में नहीं लेके जाएंगे, यीशु लेके जाएगा I आपको। always tell you from this pulpit, pastors, prophets, evangelists, apostles will not take you to heaven, only Jesus will. हम सेवक हैं, नजात हिंदा खुदावंद है। We are servants, the Savior is God. हमारा फोकस यीशु होना चाहिए। Our focus should be वो Jesus. हमारा शेपर्ड है, हमारा चरवाहा है, गडरिया है वो। He is our shepherd. वो ही संभालने वाला है, He takes care of us. वो हमें इस्तेमाल करता है, He uses us. वो हमारे थ्रू से काम करता है, He works through us. पर करने वाला वो है। But He is the one who's हमारी doing आंखें it. उस पर लगी होनी चाहिए। Our eyes should be fixed on Jesus. जिस दिन आप इंसान पर अपनी आंखें लगा The day दी, you set your eyes on humans, बाइबल कहती है the Bible says, लानत है जो इंसान पर भरोसा करता है। cursed is he who trusts in बाइबल man. कहती है कुछ भरोसा रखते हैं घोड़ों पर, कुछ रथों पर, मेरा भरोसा खुदा उन पर The है। Bible says some men trust in chariots, some men trust in horses, but we will trust the Lord our God. फोटोआं पादरियों की लगाते हैं, You know, people put up the pictures of pastors now. पूजा करते हैं उनकी, They worship them. शर्म आनी चाहिए। They should be ashamed. पहली हुक्म में कहा है कि आइडल वर्शिप नहीं करनी चाहिए। The first commandment says, do not do murti puja. फिर पापा पापा बोलते तुम लोग, And then you go around telling them, Papa, Papa. मैं
इंग्लैंड गया तो उधर मुझे पापा कहने लगे। You know, I went to England, they started calling me Papa. मैं अपने बच्चे घर छोड़ के आया हूँ। I told them I left my children behind. बार बार फोन मुझे कर रहे पापा पापा। You know, they're calling me and saying, Papa, Papa. ऊपर से तुम शुरू हो गए हो। And then you are saying here मैं from सेव का ही काम पापा पापा, कभी फोन पर कभी सामने भी पापा, मैं तो यही काम रह गया हूँ। You know, I can't even do ministry. I'm doing Papa, Papa on the phone from New York. And right here in England, you also making me do Papa work. अपने पापा को पापा बोलते नहीं है, They don't call their own dad Papa. किसी और के पापा को पापा बोलते They हैं। call someone else's father Papa. अपना पापा सामने बैठा हो, तू देख के राजी नहीं है। Your father is right before you. You are watching him and not agreeing with that. अपने पापा को फोन नहीं करना है, ना उनसे बात करना है, उनको इज्जत नहीं करना है, किसी और के पापा को तू मेरा पापा है। You're not going to call your own father. You're not going to respect him. You're going to catch someone else and say, you're my papa. अरे मम्मी को जाके पूछो असली पापा कौन है तुम्हारा। You know, just go ask your mom, who is the real papa? यीशु मसीह ने वार्निंग दिया है हमें Jesus warned us. कि जमीन पर हम अपने स्वर जो हैं जिस्मानी बाप को छोड़कर किसी और को पापा नहीं बोलना है हमें। You know, Jesus told us, upon the earth, apart from your heavenly father, don't call anyone else father. आप लॉर्ड्स प्रेयर जानते हैं? Do you know प्रभु का सिखाया हुआ वो प्रार्थना? प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना The prayer that Jesus taught you. बाय हार्ट हमें आनी चाहिए। You should know it, कंठस्थ होना चाहिए. जिनको नहीं आती आपने याद कर लेना है। For those of you who don't know it, you should memorize हम it. अपने चर्च में रिपीट नहीं करते, We don't repeat it, we don't recite it in our church. हम बिलीव करते हैं, याद करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं। We believe in it, we remember it, and we bring it to pass in our मैं lives. नहीं चाहता कि हर दिन आप उसी को रिसाइट करते रहे, I don't want you to recite it like a poem every day, पर आपको बाय हार्ट याद आनी चाहिए। but you must know it in your heart. कैसे शुरू होती है लॉर्ड्स प्रेयर? How does the Lord's Prayer start? कौन है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है। Our Father who is in heaven. वहीं पर रहना चाहिए। It should be limited to that. एक जमीन पर है जो जिस्मानी बायोलॉजिकल हमारे पिता है, You have one on the earth who's your biological father, एक आसमानी है, and you have one in heaven. उसके अलावा आप इधर उधर पापा मत बोलिए। Apart from that, don't go around finding papas everywhere. पासबान कहिए, Say pastor, सेवक कहिए, say minister, पास्टर जी कहिए, say pastor ji. रेस्पेक्ट करें, Respect them. पूजा ना करें, Don't worship them. पूजा यीशु की। Only Jesus should be worshipped. आमेन। Amen. उससे प्यार करें, मोहब्बत करें, रेस्पेक्ट करें, डबल ऑनर के लायक हैं सेवक, बाइबल कहती है। Love them, honor them, respect them. The Bible says they are worthy of double honor, the servants. सेवक डबल ऑनर के हैं, हकदार हैं। Servants of God are worthy of double honor, the Bible says. वर्शिप की तरफ मत जाइएगा। But don't go towards worship, puja prasthit na जब kare. आप डबल से क्रॉस कर जाते हैं ना, When you go beyond two, मैं उसी लाइन में हूँ। I'm within that line, within the इसलिए boundary. जब कोई मुझे ज्यादा करता तो मैं उसे पीछे हट देता हूँ। That's why when someone begins to give me too much of a pedestal, I walk back from it. हम किसी के घर पे थे, You know, we were in someone's house. दुआ करने के लिए, We were praying. बहन कहने लगी, The sister began to say, पास्टर जी Pastor, आप मेरे लिए जीसस क्राइस्ट। you are like Jesus to me. मैंने कहा आप 6 फुट दूर हो, जो उस समय तो कोविड-19 भी नहीं था। I know, I said, go 6 feet away. There was not even a pandemic then. जो मुझे कहते हैं ना आप ऐसे हैं, वही मेरे खिलाफ होने वाला होता है। Whoever says you're like that to me, in the future, they're the ones who go against me. कोई मुझे ऐसा कह देना आप बताओ, उस समय मेरे को लगता है इसे पीछे हट यार। You know, the minute someone says, you are like, oh, I say like, watch it. Let's walk back from this और person. वही बहन थोड़ी देर के बाद पता क्या कहती है And the same sister, after a little time, what does she say? मेरी वाइफ को, To my wife. सिस्टर यू आर मदर मैरी। बहन आप मरियम जैसी हो, माँ मरियम जैसी. मैं आख्या तू अपने चक्कर में साडा रिश्ता खराब कर दी। I told her, you know, because of your imagination, you ruined our relationship. अब तेरे चक्कर में मेरी भी मदर बना रही है तुमने। You know, now because of your imagination, you made my wife my mother. हुण मैंने पता नहीं मैं हंसा के डांटा इथे। I didn't know if I should laugh or rebuke that person. पर लिसन, सुनिए, जो जहां पर उनको उधर रहने दीजिए। leave people where they belong. हम इन चीजों से बाहर निकले, Let's come out of this. हम मूर्ति पूजा को छोड़ा है,
We've let go of idol worship. हम बाबागिरी से बाहर निकले, We've come out of God-man worship. ये सब इंसानों की पूजा से बाहर निकले। We've come out of human worship. अब ये क्रिश्चियनिटी में ये चीजें आ रही हैं दोबारा। Now these things are coming and inserting themselves in Christianity. केयरफुल, Savdhan. नकली चीजों से सावधान। Be careful of the counterfeit. आपका फोकस यीशु के अलावा किसी और पर ना हो। Let your focus not be on anyone except Jesus. वही हमारा मुर्जी नजाद हिंदा, वही हमें छुड़ाने वाला, वही प्रार्थना का जवाब देने वाला। He is our Savior. He is our deliverer. He's the one who answers our prayers. आप जानते हैं हमने कलीसिया में और हमारी प्रार्थनाओं सभाओं में लोग कैंसर से और कई तरीकों की बीमारियों से ठीक हुए हैं, उसके बावजूद हम इस बात का ऐलान करते रहते हैं कि ये हमारी वजह से नहीं है, यीशु की वजह से हो रहा है। You know, in our own church, there are people with testimonies that they were delivered from life-threatening diseases like cancer and COVID, and yet we stand here and we testify it is not us, but Jesus who heals them. यीशु चंगा करने वाला है, Jesus is the healer. उसके मार खाने से हम चंगा हुए हैं। It's by His stripes that we are healed. हमने नहीं खाई है, We didn't take the stripes. हमारे लिए भी वैसी ने खाई है। Even for us, He bore the stripes. जब आप कहते हो ना ग्रेट ग्रेट मैन ऑफ गॉड, When you say, "Oh, महान महान परमेश्वर का दास," तो खुदा ग्रेट कहाँ पर रह गया? then where's God's greatness? It has to be other way around. उल्टा बोलना चाहिए. मैन ऑफ ग्रेट गॉड, ये दास महान परमेश्वर का. खुदा महान है, Because God is great. वो जलाल का बादशाह। He is the King of glory. मैन ग्रेट नहीं है, हम तो सेवक हैं। Man is just a servant. पौलुस अपने खतों में कहता है, Paul writes in his letters. मोस्ट ऑफ द टाइम कहता है उसका दास। He says servant, bond servant. पौलुस यीशु का दास। He writes, "Me, I, Paul, the bond servant of Jesus." यूनानी भाषा में बड़ा खास तौर पर लिखा हुआ है, बाउंड स्लेमी से जिसको खरीद लिया है, जिसकी अपनी कुछ भी नहीं है, मलकियत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ मालिक का है। In the Greek language, it is so amazingly written. The word is bond servant, which means he is completely been bought, purchased with a price. He has no possession of his own. It all belongs to God. ऐसा दास जिसने खुद ही कह दिया, मालिक मैं तेरा दर छोड़ के जाना नहीं, तूने मुझे खरीद लिया, मेरी कुछ अपनी मर्जी भी नहीं, तू चाहे तो मैं तेरी प्रॉपर्टी, तेरी संपत्ति के समान हूँ। A servant who says, "Lord, I'm completely yours. I will never let go of your presence. I will stay right where you are. And if you want, you can treat me like your purchased property. It's fine." और हम कई बार टाइटल को कैसे यूज, अपोस्टल, ओ माय गॉड, पता नहीं क्या है, And you know, sometimes we give these titles to people. Rasool, पता नहीं क्या कर बैठे. रेवरेंट, Oh, reverend का English हिंदी नहीं आता मैंने. आदरणीय। आदरणीय. एक ब्रदर को मैं अभी जानता हूँ, कुछ वीक पहले ही वो रेवरेंट बन गए। कोविड-19 के दौरान वो जो इंटरनेट से रेवरेंट बन गया अभी हाल ही में। I know a brother who during COVID-19 recently became a reverend through the internet. तो मैं बातचीत कर रहे थे, मुझे अफसोस कर रहे थे मेरे फादर साहब की। So he called me. He wanted to express his condolences at the passing of my father. तो मेरे को, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, तो मेरे को एक दो बार बातचीत करते उसे ब्रदर कह दिया गया। You know, and because he knows me and I was talking to him, I spoke to him and I called him brother a couple of times. हर बार मुझे करेक्ट कर दें कि रेवरेंट। You know, he would correct me, stop me, reverend. ठीक है, फिर से बातचीत मेरे से, क्योंकि अभी में हाल ही में ब्रदर थे थोड़ी देर पहले ही, You know, again, I was talking to him and just a little while ago, he was just a brother to me. तो फिर मुझे रेवरेंट कहने लगे। Again, he said, reverend. मिस अभी आप कितना टाइटल को क्या कर लेंगे हम? देखो, You know, I say, you just become reverend. What you going to do with that title? Where you going to take it? है तो बंदा ही ना, You're still a human, right? अंदर तो वही है ना। Inside, you're the same, right? क्या है टाइटल में? मैं बार बार शशि को बोला डॉक्टर, मैं तो शशि को शशि बोलता हूँ ये, You know, I call Shashi. I don't call him doctor. राइट? हर बार टाइटल इतना ज्यादा आप पीछे पड़ जाएं तो आपको समझ में नहीं आती, वो तो जिम्मेदारी है, किरदार है। You know, you're so much after titles, you don't understand. The title is nothing. It's a responsibility. It's a role. पूजा ना करें टाइटल की, Do not worship the title. यीशु असली है, Jesus is the truth. उसके अंदर कुछ कमी घटी नहीं है। There is no lack in Jesus. कलीसिया बहकती जाती अंत के दिनों में लिखा है।
In the last days, even the church gets deceived, is written. कईयों का विश्वास इसलिए ठंडा पड़ जाता है And that is why the love, the faith of many grows cold. क्योंकि कईयों ने कईयों को ऑफेंड किया है, मिसयूज किया है और गलत तरीके से खुदावन के वचनों को इस्तेमाल किया। Because the false ones have gone and abused and misused and manipulated the word of God. पर मैं चाहता हूं कि हम कलीसिया स्ट्रांग बने, मजबूत बने, But I want to do this. I want the church to be strong and solid, बहके नहीं, not deceived, गुमराह ना हो, not led astray. विश्वास को ठंडा ना होने दे। Don't let your faith grow cold. किसी और की वजह से आपकी निष्ठा, आपका विश्वास कम ना होने पाए। Let no human being be the cause of the becoming cold of your faith, the reduction of your faith. कहीं पर भी आप अपना ईमान मत टिकाएं। Do not put your faith on anything else. आप यीशु पर ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे, Focus on Jesus, pay attention to him, कभी कुछ नहीं खराब होने वाला। फिर and nothing is going to go wrong for you. वो ऑलवेज सच्चा है, He's always true. वो हमेशा भला है, He's always good. वो हमेशा हमारी तरफ रहता है, He's always on our side. वो नहीं कभी छोड़ता है। He never leaves वो कहता us. है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इस पृथ्वी के छोर तक हमेशा मैं तुम्हारे He साथ। says, I will never leave you. I am with you to the ends of the earth. अगर वो हमारे साथ है If he is with तो हमारे us, खिलाफ कोई नहीं हो सकता। who can stand against us? Hallelujah. Hallelujah. चाहता हूँ पाँव के बल Let's खड़े stand up on our feet. हो। Hallelujah. Hallelujah. Praise God. मैं चाहता हूँ 2 क्षण लेके खुदा यीशु के नाम को जलाल दे जरा। I want us to stand up and take a couple moments and give the Lord Jesus Christ glory and honor. जैसे ये म्यूजिक बजता है, आप और मैं थोड़ा फोकस करें यीशु की। You know, while the music is playing, let you and me focus on Jesus. ध्यान करें यीशु की तरफ Pay attention to Jesus. कि वो मेरे छुड़ाने वाला, He is my deliverer. मेरा गढ़, He is my fortress. मेरी ढाल, He's my shield. पनाहगाह है, He's my hiding place. छुपने की जगह है। He's my hiding place. शैतान एक तरफ से आता है, यीशु की वजह से 7 रास्तों से दौड़ चला जाता The है। devil, the enemy, comes in one direction, but because of the Lord Jesus Christ, he flees in 7. उसके मार खाने से हम चंगा होते हैं। By his stripes, we are healed. सचमुच उसने हमारे गमों और हमारे दुखों को उठा लिया है। Truly, he has lifted our griefs and our sorrows. वो हमारा मुर्जी। He is our Savior. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हाथों को उठाएं यीशु के नाम। Lift up your hands before the Lord Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy धन्यवाद. Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा. Oh, hallelujah. धन्यवाद प्रभु यीशु. Hallelujah. धन्यवाद स्वर्गीय Praise पिता. be the name of the धन्यवाद Lord. Heavenly Father. Thank Hallelujah. you, Lord. We Hallelujah. worship you. हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु We जी. bless thy holy name. और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, praise you, praise you. ओ Hallelujah. तेरी स्तुति प्रस्तिश करते हैं. Hallelujah. 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 धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती है। आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद Amen. Hallelujah. अपने दान दशमांश अपने हाथों में ले Let's लीजिए। take our tithe and offerings in our hands. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. अपने दान अपने हाथों में लेते हुए हम प्रार्थना करेंगे। Please take your tithe, your offering in your hands as we pray. खुदावंद यीशु आपने दिया है उसमें से ये हिस्सा शुक्राने की भेंट है। Lord Jesus, you have blessed us, and this is a portion returned back to you as a thanksgiving तेरे चरणों offering. में लाके रखते हैं। खुदावन आप इससे लें, मल्टीप्लाई करें और अपनी बादशाह की बढ़ोतरी We bring it at your feet, Lord. Receive it and use it. Multiply it for the growth of your kingdom. अगर कोई ऑनलाइन भी हमारे साथ दे रहा है तो खुदावन उनके हाथों की कमाई पर तेरी बरकत आशीष का हाथ होने पाए
हम सब की जरूरतें आपके स्वर्गीय खजाना से पूरी होने Even if someone is joining us online and giving, Lord, would you please bless them and the work of their hands? In Jesus name we प्रभु यीशु मसीह के नाम में. pray. Amen. Amen. आप सामने आके देख सकते हैं चलो चले Please come forward as you give your offering. यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ हालेलुया 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 चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सुकड़ा है चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सुकड़ा है चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ हालेलुया 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 बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं खुदा के बात तुम सुनना रास्ता सुकड़ा है बथेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सुकड़ा है चलो हो तुम खुदा के साथ रास्ता सुकड़ा है खुदा का थामे रखना रास्ता सुकड़ा है चलो चले यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हालेलुया 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 Amen. कृपया बैठिएगा. Please be seated at this time. Praise the Lord. आप सबको हमने पहले से बताया है We informed you earlier कि आज की सर्विस थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है that the service today is a little different because शशि जो हैं ऑफिशियली बोस्टन में मूव हो चुके हैं. Shashi has officially moved to Boston. शशि सावरी जो हैं काफ़ी लंबे अरसे तक बीपीसी के साथ सर्व करते रहे हैं, सेवकाई करते रहे हैं. Shashi and Asavri have been serving at BPC for a long time. 10 years, 10.5 years now. 10.5 साल. ठीक है. और आज शशि को हम प्रार्थना के साथ दुआ के साथ कमीशन करते हुए खुदावन की सेवकाई के लिए जो हैं हम रिलीज करते हुए भेजना चाहते हैं. And we want to send Shashi with prayer, with commissioning, with the power and the blessings of God. शशि जो हैं स्टेट मूव कर रहे हैं, बल्कि ऐसे हमारे हृदय से सेवकाई से आप लोगों से ऐसे नहीं जा रहे हैं बस. Shashi is moving states. He's not departing from our hearts. जो हैं फेथफुल लोग, वफादार सेवकाई करते हुए लोग जब जाते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारा हिस्सा बन चुके हैं काफ़ी लंबे अरसे से. People who are faithful, who serve in faithfulness, when they leave, it's not an easy thing because they become part of our lives and our hearts. और कई लोग चले जाते हैं पर कईयों को भेजा जाता है. You know, some people just go away, but others are sent. बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप भेजे जाते हैं, It's very important when you are sent. एक होता है वेंट, You know, one category is went, एक है सेंट. the other is sent. वेंट क्या होता है? What is went? जो चले गया, He who got up and left. जिनके बारे में मुझे बाद में पता चला कि वो चले गए थे. And I found out later that they left. पर एक है सेंट, मतलब कि जिनको भेजा गया है. But sent means those that have been sent, they've been commissioned.
और शशि लंबे अरसे से हमारे साथ बड़ी वफादारी के साथ सेवकाई करते हैं. Shashi has been serving with us faithfully for a very long time. सावरी उनके साथ बच्चों में काफ़ी लगन के साथ पूरा जोर लगाते हुए पैशन लगाते हुए सर्व करते आ रही हैं. Asavi also has been serving with great passion and hard work amongst the children. जब ऐसे जाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी फैमिली के लोग जो हैं छोड़ के जा रहे हैं तो इमोशनली भी इतना आसान नहीं होता है मेरे लिए. You know, when such people leave, it feels like members of our family are leaving and it's not easy emotionally. और शशि जो हैं क्या बोले आप यार क्या What do I tell you about Shashi? What you doing यार. जो आप नहीं जानते. तो इसलिए एक्चुअली मैं भेजना नहीं चाहता हूँ ऐसे लोगों को. The क्या truth करें? is, I don't want to send these people. बट जब प्रभु ने उनको लेके जाना है तो फिर हमें रिलीज करना है But you know, the Lord wants to send them, so we must release them खुशी के साथ, with joy, कमीशन के साथ. with commissioning. शशि लोग जो हैं मेरे परिवार के मेरे बच्चों का हिस्सा बन चुके हैं. Shashi has become a part of our family and our children. Amen. BPC has gone through a lot of variation in the past. BPC में बड़ा उतराव चढ़ाव आया है बीते सालों में. और उनके दौरान मुझे बड़े स्ट्रांग लोग जो टीम में मिले हैं. And during those times, I have had some very strong people in my team. जो चर्च को डिफेंड करते हैं, Those who defend the church, जो चर्च की सेवकाई करते हैं. those who serve the church. कोविड-19 जब जो कोरोना वायरस आया उस समय भी हम में से कोई भी जन एक भी सर्विस नहीं मिस करी है. हम लोग लगे रहे. Even during COVID-19, when there was a shutdown everywhere, none of us missed a single service. हम सर्व करते थे. We kept on serving. हम इनफैक्ट ज्यादा करते थे. In fact, we did more during that time. और शशि और जेसन मेरे साथ और गौरव जो हैं और आशुतोष और चुनिंदा भाई जो हैं क्योंकि हम लिमिटेड लोग ही इकट्ठे हो सकते थे. Because we could only take a limited few, Shashi, Jason, Gaurav, Ashutosh, these were the few people with me during those days. और सर्व करते हैं. And they did seva. इवन फेलोशिप हॉल में हम खाना खाते, ये लोग सब लोग चले जाते, उसके बाद यही लोग ये प्रीचिंग करने के बाद पोछा लगाते हैं. You know, people would eat in the fellowship hall. These same people who used to preach, they used to be found mopping the floor later. राइट. बर्तन धोना है, पोछा लगाना, सारे काम करते हैं. You know, wash dishes and do the pocha, the mopping. सब जो अपना ये जो टाई शाई उतार के रख देते हैं उसके बाद फिर पोछा लगाते हैं. They take off his tie and suit and just start doing mopping. तो इसलिए मुझे खुशी होती है कि ये वो टीम के लोग हैं जो टाइटल की वजह से नहीं है, ये सिर्फ माइक में नहीं बोलते हैं, ये बिना माइक के भी सेवा करते हैं. That's why I know that the people on this team are not for after titles. They don't just speak on the mic. They serve even when the mic is not in their hand. तो वफादारी होती है जब लोग आपको कहते हैं जो हैं पादरी साहब, आप तो पादरी साहब लगते हैं, आप क्यों नहीं, आप अलग क्यों नहीं चर्च बना लेते हैं. So there's faithfulness because people come to you and say, you know, you look like a pastor. Why don't you start your own church? ठीक है ना. तो Are you following? मुझे शशि की कन्वर्सेशन को क्या बोले टटोलना नहीं होता है. I don't need to monitor or check Shashi's conversations. He know how to answer. उसको पता है कैसे जवाब देना है. ठीक है ना. जब आपके बारे में बोलते हैं ना कोई तो शशि को पता कैसे डिफेंड करना है. You know, when people talk about you, Shashi knows how to defend you. जब कोई बीपीसी के बारे में बुरा बोलता है शशि knows कैसे डिफेंड करना. When people speak against BPC, Shashi knows how to defend. इसलिए वफादार लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. That's why faithful people are very important. और आप जो खुदा के घर पे बैठे हैं, आप उन वफादार लोगों की वजह से हैं. आप वो वफादार लोग हैं जो रिगार्डलेस बाहर कोई कितना भी बोले, आप आकर बैठे हुए हैं. आप खुदावन के वफादार लोग हैं. And you who are seated here in this church are because of the service of faithful people, and it's because of your faithfulness. No matter what people tell you outside, you are faithful to the church. मैं चाहता हूँ, मुझे चंद लोगों ने कहा कि हमें
जरूर बोलना है तो मैं उनको बोलने देता हूँ, तो इसलिए मैं I want to give time to some people. They've insisted that they want to say a few words. So I'm going to give them इससे time. पहले मैं किसी और को टाइम दूं, मैं चाहूँगा पास्टर विल्सन मसीह, would you come and say a few words, because मैं चाहता हूँ कि वो खुदा उनका वचन कैरी करते हैं. Before others get a chance, I want the man of God, Pastor Wilson Masih, to come because he carries the word of God. I want him to speak to us. You want me to speak in Hindi or just आपकी मर्जी है. आपकी मर्जी है. मैं काफ़ी सालों तो न्यूयॉर्क जा रहे हैं You know, I've been coming to New York for many years. और थ्रू डैनियल एंड पास्टर जी नाल शशि दे नाल आई वुड से कि कब ज़्यादा 8-10 साल तो हो ही गए ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਗਿਲਦੇ ਆ Yes, yes. yes about 8 or 10 years I know him. I know him for 8, 9, 10 years because of being with Pastor G, with Brother Daniel. Keep meeting him on and off. So I know quite a bit about you, and I want to read something and then share 2 thoughts and then leave it alone. मैं आपके बारे में काफ़ी कुछ जानता हूँ. मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद 2 विचार आपके पास छोड़ना चाहता हूँ. And not only for you, सिर्फ आपके लिए नहीं, those are applicable to each one of you if you are serving God. ये बातें आप पर भी लागू होती हैं अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं. So Psalm 78 78 भजन and verse 70, 71 and 72. और उसका 70, 71 और 72 आयत. I'm reading in NIV, और मैं NIV से पढ़ रहा हूँ अंग्रेजी में. and this is what it says. और यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा, He chose David his servant उसने अपने दास दाऊद को चुना and took him from the sheep pens. और उसको भेड़ों के जगह से ले लिया. From tending the sheep he brought him भेड़ों की रखवाली करने से उसे वो ले आया to be the shepherd of his people Jacob, ताकि वो अपने लोगों यानी कि याकूब का पासबान बने, of Israel his inheritance. इज़राइल का जो उसकी संपत्ति है. And pay attention to this verse, अब 72. 72वीं आयत पर ध्यान लगाएं, गौर करें. And David और दाऊद shepherded उसने पासबानी की them उन लोगों की with integrity of heart, दिल की खराई से, with skillful hands, हाथों की हुनर से, हाथों के हुनर से, he led them. और उनकी अगुवाई की उसने. तो मैं इसको इस तरीके से भी पढ़ सकता हूँ. I can read it like this also. And और Shashi शशि shepherded them ने पासबानी की उनकी with integrity of heart खरे दिल से and skillful hands, और हुनर वाले हाथों के साथ he led them. उनकी अगुवाई करते हुए. एक बहुत बड़ा कंपोजर था, उसका नाम बर्नस्टीन. There was a mighty composer, his name was Bernstein. बर्नस्टीन को किसी ने पूछा Someone asked Bernstein, कि सबसे डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन सा प्ले करने वाला है. what is the most difficult instrument saz to play? And he said और उसने जवाब दिया, the second string, दूसरा तार. दूसरा तार जहाँ बैकअप होना. Oh, to take the second seat, मतलब दूसरा जो दर्जा लेना. जैसे होता है ना स्टार्टिंग क्वार्टरबैक, You know, like you have a starting quarterback and in a there's a game, backup quarterback, and then there's a backup guy, and there's a lead singer, and there's a lead and singer, there's a backup singer. और जो पहला होता है जो गीत गाता है और जो पीछे से गाता है बैकअप तो करता वो है. कहता सबसे मुश्किल जो इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला ना वो है सेकंड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. वो जो दूसरा साज बजाने वाला होता है वो सबसे मुश्किल होता है, जो दूसरों को सहारा देता है. अब मेरी बात समझ गए? Are you following? फर्स्ट स्ट्रिंग, द सेकंड स्ट्रिंग. ये पहला तार, ये दूसरा तार. और कई बार यही होता है जैसे आपने कहा कि जो सेकंड स्ट्रिंग होता है ना लोग उसको बड़ी उंगलियां देते हैं कि आप क्यों नहीं फर्स्ट स्ट्रिंग बन जाते. You know, and that's what happens many times. The second string, people poke it and say, why don't you become the first string? You know, यीशु मसीह के पास जो झूना के पास एक बार झूना के शागिर्द आए. You know, once the disciples of John came The to John, Baptist, John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. वो कहते हैं कि तू तो मिनिस्ट्री में पहले से था. You know, they told him, you came to ministry before. And there's more people are following you. और तेरे पीछे बड़ी झुंड है. अब वो तुझे छोड़ के यीशु के पीछे जा रहे हैं. और and your crowd is leaving you and following Jesus. और जॉन द बैप्टिस्ट ने पता क्या कहा? You know the answer John the Baptist gave? उसने कहा मैं तो बराती हूँ. He's I'm the
Oh, yeah. I am the friend of the bridegroom. या bridegroom, yes. Yeah, I'm the friend of the पर जो bridegroom. दुल्हा है वो यीशु मसीह है. But the bridegroom is Jesus Christ. तो पता कि जो उसने कहा है, बहुत बड़ी आयत कही उसने. He said a big word there. He must increase, उसे बढ़ना है. मैंने कम होना है. And I I must must decrease. decrease. I must decrease. Amen. और ये खूबी जो बहुत कम लोगों में होती है. And this quality is found in few people. To know your place अपनी जगह को पहचानना and be satisfied there. और वहां पर संतुष्ट रहना. And Sachi, you had that quality. और भाई शशि आप में वो गुण है. और मैं ये खुदा Oh, की glory to प्रीति God. के लिए Yes. ये कह रहा हूँ आपको ऊंचा करने के लिए, for His glory I'm saying that. मैं खुदा के जलाल के लिए कह रहा हूँ. I'm not trying to pump you up, शशि. And you know what? There are other two things you had. और दो बातें और थी आप में. वो पता ये जो बातें जो है मैंने यहाँ पढ़ी. Integrity of heart. and दिल of की skill. खराई और हुनर, and skill. 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 You know, इस दुनिया में बहुत से skillful लोग हैं. This world is full of हुनर वाले लोग. और skill का होना कोई बड़ी बात नहीं है. And to have talent is not a big thing. You know what the great thing is? Integrity. सबसे बड़ी बात खराई होती है. Character. अगर आपका चरित्र. अगर करेक्टर नहीं है तो इंटेग्रिटी देन जो हुनर की कोई वैल्यू नहीं है. If you do not have खराई, then all your talent is of no use. एंड ऑल ऑफ यू हु आर इन एनी मिनिस्ट्री, आप कभी किसी भी सेवा में हैं, जो गीत गाने वाले हैं, जहाँ एल्डर्स हैं, जो किसी भी सेवा में हैं, And all of you that are in any ministry, whether you're on the worship team or you're the elders that administrate, एंड ऑलवेज प्रे कि आपकी इंटेग्रिटी, आपका जो करेक्टर है वो यीशु मसीह जैसा बनता जाए. अगर आप यीशु मसीह जैसे बनते जाएंगे तो हुनर अपने आप खुदा देता जाएगा. हमेशा ये दुआ रखें कि आपका चरित्र यीशु मसीह जैसा बन जाए. Your character becomes like Jesus so that you have integrity within you. If I have to choose a elder or anyone in my ministry, अगर मुझे अपनी खिदमत में किसी प्राचीन या किसी अगुवे को चुनना है, I will first look for the character and not the art. पहले मैं उसके अंदर खराई ढूंढूंगा, उसके अंदर हुनर नहीं ढूंढूंगा. हुनर बात की बात है. Talent is a secondary thing. And with God's grace, you had integrity and you have the art or the skill. God bless you and keep you. Amen. And you are very fat person. Very skinny, but very fat. तुम बड़े मोटे हो, दिखने में पतले हो लेकिन बहुत मोटे हो. Let me explain what I mean. मैं बताना चाहता हूँ. F stands for faithfulness, F मतलब विश्वसनीय, वफादारी. वफादार. वफादारी. जी, वफादारी. A stands for availability. A का मतलब है कि मौजूद है, हर वक्त तैयार available है, है. हर वक्त available तैयार है. Yes. जैसे कोरोना के टाइम में रहे आप, right? Just like he was in Corona time. And T का मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं I can say that you are very teachable person. और T, I don't know the complete story, but आपको सिखाया जा सकता है. So if you find a fat person, अगर आपको कोई मोटा फैट मिल जाता है, तो उसकी वैल्यू करें. प्लीज उसको मूल्य Say दें. to me, faithful, Faithful, available, available, teachable. teachable. Skill and integrity are very important. God bless. हुनर और खराई दोनों बहुत जरूरी है. खुदा आप सबको बरकत दे. Thank you, Pastor Ji. All glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor G. Praise the Lord. Amen. Brother Daniel, I want to take a few minutes. भाई डैनियल कुछ क्षण लेना चाहते हैं. Yes. भाई नीचे से ही बोलेंगे. जैसे पास्टर जी ने बोला, मेरे को ऐसे बोलना नहीं आता, पर मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा. जैसे शशि फर्स्ट डे चर्च में आया था, मैं बेन और शशि बैठ के एक ही टेबल पे खा रहे थे. तो शशि ने एक बात बोली कि अगर चर्च आपको मिनिस्ट्री में ना ले, या अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करो, तो हमें चर्च छोड़ देना चाहिए. दैट मीन कि हमें चर्च में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, चाहे पास्टर कहे या हम खुद अपने आप को अवेलेबल बनाएं. तो मेरे को उसकी वो बात याद रहती है. शशि के साथ मैंने एक मिशन ट्रिप लिया था, और हम लोगों ने कोई 6 लोगों को प्रभु के बारे में बताया इसने, जिनको नहीं पता था. तो हम एक घर में रह रहे थे. हम कोई 2 बजे उनके घर में पहुंचे थे सोने के लिए. हमें जहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे सो जाओ,
तो वहाँ पे मूर्तियाँ बहुत थी। तो मैं तो अपने घोड़े बेच के सो गया। पर शशि जाग रहा था, वो प्रेयर कर रहा था, क्योंकि उसको कुछ नजर आया था वहाँ पे, उनके घर की ऐसी सिचुएशन थी। तो मैं जैसे सबको पता है कि मेरी वाइफ को शी वाज सिक। क्राइसिस था, और शशि एवरी डे मेरे को कॉल करता था कि अंकल हाउ यू फीलिंग। मेरे को बहुत लोग कॉल करते थे, पूछते थे कि आंटी कैसे है या आपकी वाइफ कैसे है, तो मैं बताता था कि कैसे चल रहा है, मतलब। पर शशि मुझसे ये बात करता था कि आप कैसे फील कर रहे हो। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और चर्च के लिए शशि जैसे वो होता नहीं है, शशि और असावरी दोनों ऑलराउंडर, किसी भी रोल में उसको डाल देते थे तो वो काम करता था। एंड आई एम गोइंग टू मिस हिम, स्पेशली जैसे खाने वाने का चक्कर होता था तो मैं शशि को बोलता था कि अरे चेक कर दे भैया इसमें नमक कैसे है। ये आदमी सूंघ के बताता था कि नमक कैसे है। सो रिलेशनशिप तो हमारा रहेगा। अभी हम बहन को मिलने के लिए हायो में जा सकते हैं, तो ये तो 4 घंटे का रास्ता है। यस, 3:30 नहीं, हमें ब्रेक लेनी पड़ती है। तो शशि हमारी फैमिली के साथ काफ़ी इन्वॉल्व हो गया। एवरी नाइट ही कॉल मी। मेरी वाइफ को अलग से कॉल करता था, उनके साथ प्रेयर करता था, और वही नहीं, हमारे बच्चों के साथ भी प्रेयर करता था। सो पर्सनली इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। आई एम गोइंग टू लूज। ये मेरे को क्या क्या बोलता है, ब्रदर जी, दद्दू, नानू, मैं पता नहीं कितने नाम हैं इसने मेरे को दे रखे। और हमारी फैमिली में एक प्रॉब्लम हुई थी रिसेंटली अपने बच्चों के साथ। तो शशि केम टू नो एंड ही टोल्ड मी, इसे अंकल जी आप कुछ भी कहो, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि आपने इनएप्रोप्रिएटली बात करी है अपनी वाइफ से, अपने बच्चों के साथ। ही पॉइंटेड एट सिन माई सेल्फ, कि आपने गुनाह किया है, सो ही इज अ स्ट्रेट शूटर। कभी जब इसको पता चलता है कुछ तो वो बोलता है, जैसे किसी को कुछ भी फील हो या कुछ भी है। बट शशि इज अ स्ट्रेट टॉकर। उसके दिल में जो कुछ है वो बाहर वही वैसे आएगा। सो इसने, आप सब जानते हैं कि कैसे उसने ये किया है किसी फैमिली को। कोई भी प्रॉब्लम होती थी, शशि इज ऑलवेज देयर, एंड वी गोइंग टू मिस यू। एंड असावरी को मैं हमेशा बोलता हूँ ये मेरी सुंदरी है। सो आई एम गोइंग टू मिस यू। Eva, अच्छा। That is my favorite young friend of BPC from 2010. That was her title and it still is. My favorite young friend in the church. Sorry, Shashi uncle, but I'm going to be talking about a sovereignty. Praise the Lord, everyone. Today, I, Evangeline Gill, on behalf of my Sunday school classmates, would like to take a moment and give thanks to the sovereignty, our Sunday school teacher. She has seen us grown up even throughout the pandemic. She continued to teach us for 2 hours. We are all going to miss seeing a sovereignty's face every Sunday. She's always been more than a Sunday school teacher to us. And I'm so thankful for sovereignty. We're going to miss you so much.
In Jeremiah 29:11, it says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Okay, it says, Jeremiah 29, verse 11 says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope." So I believe that whatever God has planned for you is the best. So even though you are not going to be here in front of our eyes, always going to be here in our hearts, we will miss you dearly as sovereignty. Thank you so much, and we all love you. Yes. खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। I greet you all in the name of the Lord Jesus Christ. यीशु ने कहा था कि आपका हाँ हाँ होना चाहिए और आपका ना ना होना चाहिए। Jesus said, let your yes be a yes and your no be a no. I've seen that in this brother. इस भाई में मैंने ये बात देखी है। आप लोग सब जानते हैं, चाहे आपको अच्छा लगे या ना, इन्होंने जो बोलना है वो बोलना है आपको। You know, whether you like it or not, he will tell you what he wants to tell डैनियल you. अंकल ने कहा था। You know, Daniel uncle said so. So I learned that एक वो चीज़ इनके बारे में मैंने हमेशा एडमायर की है I've always admired this one thing about him, कि he is a man of truth। कि वो सच्चाई बोलने वाला आदमी है। और इनकी वाइफ, और his wife, पत्नी, she has a meek and a quiet spirit। उनके अंदर एक बहुत ही नम्र और शांत आत्मा है। और that's a very wonderful balance। और ये बहुत अच्छा संतुलन है इनके बीच। और and I've seen that even in their married life। और उनकी वैवाहिक जिंदगी में मैंने ये बात देखी है। ये बाइबल कहती है कि यीशु के अंदर ट्रूथ और ग्रेस दोनों बैलेंस में था। वचन में लिखा है that in Jesus you found सच्चाई और अनुग्रह, फजल दोनों माप में। इनमें सच्चाई है, उनमें फजल है। He has truth and she has grace. और दोनों साथ में होते हैं तो एकदम बैलेंस में रहते हैं। And when they're together, it's balanced, संतुलित होता है। एंड इन लोगों ने हमारी फैमिली की बहुत सपोर्ट की है, बहुत हेल्प की है। They've really helped our family. एंड ये भाई को खाने का शौक है। This brother loves to eat. और वो हमारी भाभी हैं, उनको गाने का शौक है। And this sister-in-law of ours loves to sing. सो अब जब इनको घर पे बुलाएं तो इनके लिए निहारी बनाइएगा And और तानपुरा वगैरह हारमोनियम वगैरह रखना सिस्टर जी के लिए। so when you call them to your house, make sure you make nihari for the brother and for the sister. Have a tanpura and an instrument ready. Of all the people in BPC, I've had the deepest fellowship with this brother here. सबसे गहरी रफाकत मेरी पूरी बीपीसी में इस भाई के साथ रही है। And I pray that the Lord will bless them and use them mightily in the future. मेरी दुआ कि खुदावन इनको आशीष देगा और इनको भविष्य में बहुत तायत से इस्तेमाल करेगा। Thank you. Amen, brother. Love you. ये सब जब लोग इधर आके अपना इमोशन का इजहार करें तो इसका मायना ये है कि BPC is not just a church, it's a family. Amen. You know, when people come up here and speak about their emotions so openly, that reveals something कि ये कोई चर्च कलीसिया नहीं है, सिर्फ ये एक परिवार है, ये खानदान है। नहीं तो लोग कहते हैं चर्च में लोग आते हैं जाते हैं, इधर आते जाते नहीं हैं, लोग फैमिली बन जाती है, रिश्ते बन जाते हैं, जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। You know, otherwise, you know, people can come and go, but people, that's not how it is here. People come here, they remain a part of our family. We build relationships. मैं दूर जहाँ भी जाते हैं कोशिश होती है कि जहाँ भी वो जाएं, जितनी दूर जाए उधर जाके मैं मिलता हूँ। You know, wherever these people go, this is my effort always to go right where they are and meet with them again. दूरी मायने नहीं रखता है, जब आप दिल से मोहब्बत करते हैं तो फिर आप कहीं पर भी जाएं, आप हमारा हिस्सा हैं, हम आपका हिस्सा हैं। Distance do not matter. If you are truly part of our heart, then we will be where you are. Praise God. Hallelujah. Amen. Sister Savri, on behalf of board and my family और मैं पूरे जो कलीसियाई लोग हैं उनको जो हैं उनके बिहाफ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि you guys going to be missed. You're a great vessel in the house of the Lord in the kingdom of God. Thank you, Pastor Ji. God bless you. एक और बच्चा मुझे उनको मिस नहीं करना है तुरंत, तो I want to give him time. Another young man, don't want to miss him. यूडी कुछ कहना चाहता है।
Praise the Lord, everyone. Today I will be talking about how big of an impact Shashi Uncle has had on this church. So starting from the little kids, he saw each and every one of them grow from toddlers into teenagers. He's always been able to put a smile on everyone's face. Sorry. Come here. You okay? So, yeah. Praise the Lord. The amount of time he has spent with every little kid in this church is unbelievable. It's amazing how someone could actually put a smile on one's face so fast, no matter what age. I remember ever since I was 5, he would be playing with me no matter what. He would be making me laugh no matter where I am. Until this day, he was still my teacher. We would have these math competitions every time we would meet, and it was just amazing. And I remember once we met in a train when I was on a school trip. I saw him, and I see him praying for nonstop, and I go to hug him, right? And my friends are like, "What is he doing?" I'm like, "He's praying." And they're like, "For that long?" And they're like, "That's amazing." I'm like, "Yeah, that's my uncle right there." Amen. Praise God. Good memory, bro. Good memory. And when I look at my little sister's face, every time she looks at you, she's just smiling. Every time I see those little kids playing with you, they're always in joy. And it's just amazing how God, every time we look at you, we just see God working through you and using, which is just amazing. And not only the little kids you make laugh, I see you every time we would go over to Thanksgiving with Daniel Uncle. I would see him having a smile on his face just talking to you. I'm sorry. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. God bless you. Amen. Amen. God Thank bless you you. for sharing. Amen. Hallelujah. Praise God. You know, Yuri has a great memory. That wasn't a train. I remember that like yesterday, but he remembered it all. God bless him. चर्च को बताना चाहता हूँ, छुप के मत जाएं पीपीसी से। आप इधर होते हैं तो आप प्यार से जाएं, तो सब लोग जो हैं थोड़ा इमोशन का भी इजहार कर लें तो अच्छा होता है। You know, this is a message for all of BPC. Please don't go away hiding in a secret way. You come and you tell people that you're ready to leave, and we will express our emotions and send you with love. Praise God. जब जाना है तो जाना है। खुदावन अगर आपको लेके जा रहा है तो हमने खुशी के साथ जो हैं आपको bless करते भेजना है। When it's time to go, it's time to go. When God is sending you, we will send you with joy. Oh, that's what's happening. So क्या हो रहा है? सबका चेहरा वहाँ क्यों है? तो पास थोड़ा पॉज लगाएं। You know, हम लोग चाहेंगे कि शशि के और असावरी के लिए दुआ करके कमिश्निंग करें। शशि को चंद मिनट देना चाहता हूँ मैं। We're going to pray a commissioning prayer for Shashi and Asavri, but I want to give Shashi a few seconds, a few minutes. 7 बज रहा है, almost. लेकिन मैं आप सब से कुछ 2-4 बातें कहना चाहता हूँ. I just want to say a few things to you. I know it's nearly 7 o'clock. When we came to the US in 2005, we left our families and came here. It was just the 2 of us. We had a great church in Philly, and we grew, and we really, our ministry grew. बहुत अच्छी कलीसिया थी फिलाडेल्फिया में 2005 में जब आए हम प्रभु में बढ़े, हमारी मिनिस्ट्री बढ़ी। 2010 में जब हम यहाँ आ रहे थे, when we were coming here in 2010, God told us, I'm sending you as missionaries amongst Indians and Pakistanis. परमेश्वर ने कलाम किया कि मैं आपको इंडियन और पाकिस्तानी लोगों के बीच में मिशनरी बना के भेज रहा हूँ आप दोनों को। ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही. I didn't tell anyone about this till today. I mean, I told my mentors who are not part of this congregation and this scene.
उनको बताया जो मेरे सलाहकार हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, लेकिन यहाँ नहीं है. When you are a missionary, you have to live a different life. जब आप मिशन पे होते हैं तो आपकी ज़िंदगी फ़र्क होती है. 2 बातें खुदावन ने दी हमें जिससे लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ गई. 2 things God gave us that really gave stability to our lives. He gave us a church that is a family. ऐसी कलीसिया दी जो परिवार है. जब आप अपने वतन को छोड़ के अपने माँ बाप, भाई बहन, अंकल आंटी, दादा दादी, नाना नानी सबको छोड़कर यहाँ आते हैं तो लगता है किसी ने आपको जड़ से उखाड़ के कहीं और लगा दिया है. It feels like you've been uprooted and planted in a new place. फिलाडेल्फिया में दोस्त थे, मित्र थे. In Philadelphia we had friends, but here we have family. यहाँ पर परिवार मिला. The first time we met Pastor was in his house. You know, before church service ever happened on a Sunday, on a Tuesday we were in his house. इससे पहले कि इतवार की सभा हो, हम यहाँ आए चर्च में, हम पहले ही मंगलवार के दिन इनके घर पे बैठे थे. हमने बड़ी कोशिश करके अच्छे नए बिल्डिंग में अपार्टमेंट चुना. We chose a new building with a new apartment and सब सामान अंदर डाल दिया हमने. We put all our stuff in there. The building failed inspection. बिल्डिंग का इंस्पेक्शन फेल हो गया और हमारे पास रहने की जगह नहीं. और फिलाडेल्फिया घर हम दे चुके थे चाबियां. We'd given the keys away back to the owner. So हम बेघर, homeless हो गए थे. We became homeless for a little while. I was eating with Asavri lunch at Balochi's. Balochi restaurant at Queens Boulevard में उन दिनों था. वहाँ पर हम लंच खा रहे थे. मैंने इससे कहा, you know, AG का एक पास्टर है जिसका नाम है जतिंदर P. Gill. There's an Assemblies of God pastor with the name Jatinder. चलो फोन करते हैं. I just called pastor, told him what's going on. You know what he did? Shashi, don't worry, come home. शशि फिक्र मत कर, घर आ जा. मैंने कहा पास्टर जी नहीं, हम आएंगे, आप आराम से संडे को मिलते हैं. नो नो नो, where you gonna go? Come home. कहाँ जाओगे? घर आ जाओ. घर गए, चाय शाय शुरू हो गई, बातें शुरू की, पकोड़े बना दिए. सिस्टर जी ने पता चला सावरी को एलर्जी है, and all that happened, right? You know, everything started happening like we know each other from Adam, but we didn't know each other. And then when we started to talk, जब हम बातचीत करने लगे तो हमने पूछा एक दूसरे से कि पास्टर ने पूछा आपकी पृष्ठभूमि क्या है? What's your background? I told him who I am. Asavri told him who she is. That lady there, Sister Rose, वो जो है ना बहन हमारी, रोने लगी. बहुत रोती हैं, लेकिन अच्छी आंसू रोती हैं, खुशी की आंसू, दुआओं में आंसू बहाती हैं. Sister began to cry tears of joy. She said, जो हम प्रभु से मांग रहे थे वो आप लेकर आ रहे हैं. आपने हमारे चर्च में आना है क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. See, when God does things, He does it His way. जब परमेश्वर चीज़ें करता है तो अपने तौर तरीके से ही करता है. इसलिए जब हम बॉस्टन जा रहे हैं ना, हमें पता है कि वहाँ पर भी खुदावन का एक मकसद है. That's why when we're going to Boston, there is a plan of God. We're not doing this because मैंने बड़ा साइंटिस्ट बनना है, नाम कमाना है. I'm not doing this for my fame and career growth. खुदावन ने 2015 में कलाम किया. 2015 we got our green card. God said, I want you to go to Boston. सीधा कह दिया बॉस्टन जाना है. 5 साल दुआ की, 51 जगह एप्लीकेशन डाली और नहीं मिला जॉब. 51 applications and 5 years of prayer. And then one morning in November, God showed me a vision and the rest is history. नवंबर के एक सुबह 5 बजे खुदा ने एक दर्शन दिखाया जिसमें उसने दिखाया कि आकाश में एक दरवाज़ा है जो ग्लास का दरवाज़ा है. He showed me a door in the sky, a glass door. उसका हैंडल सोने का बना पड़ा है. It's a golden handle. And a hand like the hand of Jesus holding a golden key opens that lock, presses the handle and opens the door outward. उस हाथ में जिसमें एक सुनहरी चाबी थी, उस ताले को खोला यूं और खोल दिया. और खुदा ने मुझसे कहा कि अब बॉस्टन का रास्ता खुल चुका है. God said, now the time is for you to go to Boston. उसी दिन दोपहर को मैंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया जो मुझे मिल गया. 51 rejections के बाद, after 51 rejections, God made that happen that day through a vision, and then
ऑन लंच टाइम 40 मिनट्स में अप्लाई किया, बाकी जॉब मिल गई है, अमेजिंग जॉब है। जिंदगी में पहली बार ऐसे लगता है कि अपने हाथों से जो काम करेंगे उसे कैंसर के मरीज की जिंदगियां बच जाएंगी। For the first time I feel that way about untreatable cancers, that the research we're doing is going to save human lives from cancer. But it's not about human lives from cancer. It is about human lives from hellfire. इंसानों को कैंसर से बचा दिया और यीशु नहीं दिया ना, तो कोई फायदा नहीं है। उनको नजात चाहिए, और बॉस्टन में नजात देने वाले लोग कम हैं, यीशु के बारे में बोलने वाले लोग कम हैं। वहाँ के लोग इतने स्टिफ और इंटेलेक्चुअल हैं कि सुनते नहीं किसी और की। They are stiff intellectual people, cold to the gospel, religious or atheistic. वो या बड़े मजहबी हैं या नास्तिक हैं वहाँ के लोग। खुदा ने हमें कहा है कि वहाँ जाकर उन लोगों को मेरा अंजील तुम दोनों बताने वाले हो, इसलिए जा रहे हैं हम। God said you're going to go speak my gospel to those people. Born servant of Christ. परमेश्वर का पास ये दास कह रहे थे, मुझे उर्दू में ज़्यादा चलता है गुलाम। गुलाम हूँ मैं यीशु का। हम दोनों उसकी सेवा करते हैं, वहीं जा रहे हैं। आपका घर रिचमंड हिल या फ्लोरल पार्क में है, आपका एक और घर आर्लिंगटन मैसाचुसेट्स में भी है। यू हैव अनदर होम नाउ इन मैसाचुसेट्स, ओके? वी आर वन फैमिली। इसलिए मैं हंस रहा हूँ, मुझे रोना नहीं आता। यस्सु का काम इतना जलाली है, रो के क्या कर लेंगे? Amen. The glory of God, His work is so amazing. What am I going to cry for? Already 23 people are reading the Gospel of John in Boston. These 2 months that I'm going up and coming down. 23 लोग यूहन्ना का अंजील पढ़ रहे हैं, उनसे मैं फॉलो अप करता हूँ। वहाँ पे दरवाजे खुल चुके हैं। The door is open. A great door of ministry is open. We need your prayers. We need your partnership. And before I close, हमें आपके साझेदारी की ज़रूरत है, आपके दुआओं की ज़रूरत है। I'm going as a missionary with Asavri to the intellectuals and the atheists of Massachusetts. एक बार फिर मिशनरी बन के जा रहे हैं। मिशनरी का जो भेष होता है ना, कभी कभी कुछ वखरा लगता है, हमारा अजीब है। बाहर से साइंटिस्ट, अंदर से प्रचारक। It doesn't matter what your outside is. The inside is more important. 2 Timothy chapter 3, 1 through 6. 2 Timothy 3, 1 से 6। आपको पता है आज दोपहर को खुदा ने मुझे एक कलाम दिया। मैंने इस किताब में लिखा यहाँ आते ही, पास्टर जी के नोट्स आए, 2 Timothy chapter 3, 1 to 6। एक और कलाम खुदा ने मुझे दिया, Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of your faith। पास्टर जी का तीसरा कलाम आज था, Fix your eyes on Jesus, the author and finisher of your faith। वही रूल कदूस जो इनके अंदर है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है। The same Spirit of God that dwells in him, dwells in me, dwells in you. We are advancing a kingdom. हम एक राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के वक्त से खुदावन का राज्य हिंसा से आगे बढ़ रहा है, और जो हिंसक होते हैं वो उसको हथिया लेते हैं। Since the days of John the Baptist, the kingdom of God is advancing by force, and forceful people take hold of it. I want you to continue the forceful work you're doing. शैतान बोलने से नहीं मानता, उसको लात मारनी पड़ती है बहुत बार। The devil doesn't agree if you just speak to him or request. You need to kick him out of places and people. Continue to do the amazing work of God. Pastor is a man of honor. Sister is a woman of honor. पासबान आदरणीय है, हमारी सिस्टर जी आदरणीय है। Pastor is a man of integrity. Sister is a woman of integrity. खराई है इनके अंदर। Pastor is a man of power. Sister is a woman of power. You have a very powerful leadership over you. पासबान वो आदमी जिनके अंदर खुदान का सामर्थ बसता है। बहन वो स्त्री हैं जिनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ बसता है। आपके अगुए बहुत ही शक्तिशाली हैं। आप घबराओ मत। You are in amazingly good hands. आप बहुत ही अच्छे हाथों में खुदावन ने आपको रखा हुआ है, और सबसे बड़ा उसका कवि हाथ हम सब पर है। And the greatest hand is the hand of God over all our lives. Would you give glory to God? Would you please give glory to God? परमेश्वर को जलाल दें, परमेश्वर को सारा जलाल दें। हालेलुया। चर्च आइए हम मिलकर सिस्टर सावरी के लिए और शशि के लिए प्रार्थना करें। और मैं चाहूँगा रोजी मेरे साथ। यस रोजी आ जाए प्लीज़। राइट।
Pastor Ji, Asavri कुछ कहना चाहते जी जी हैं. Asavri has a few words. रोजी आप आ जाओ प्लीज. प्रेज द लॉर्ड सभी को. प्रेज द लॉर्ड. मुझे रोना धोना आता है. एंड आई वांट टू से थैंक यू. एक बहुत छोटा लफ्ज़ है, बहुत छोटी टर्म है, बट रियली इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग. आई स्टिल रिमेंबर हमारे चर्च व्हेन वी फर्स्ट केम टू चर्च, पहला दिन यही चर्च थी और उसी दरवाजे से हम आए अंदर. आई थिंक इट वाज 10 to 4 और शशि बड़े टाइम के पक्के हैं एंड उन्होंने मुझे कहा था कि नहीं, और पास्टर जी ने भी कहा था कि आपको चर्च के 5 मिनट पहले पहुंचना है. सो वी रीच्ड हियर और ऐसे आ गए अंदर, इधर ही खड़े रह गए बस. और ऐसे 3-4 जने थे, क्वायर में थे कोई लोग, और इमीडिएटली आ गए और कहने लगे अच्छा आपका नाम क्या है, मेरा नाम ये है. एंड आई जस्ट इमीडिएटली फेल्ट वेरी वेलकम. तो आई एम सेइंग कि फर्स्ट डे से I've felt that there is some connection here. और जब मैं और मेरे हस्बैंड आए यहाँ पे तो हमें नहीं पता था कि गॉड हमें कैसे यूज़ करेंगे. हमारे दिल में ऐसे ही था कि प्रभु जी जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो. मतलब वी आर रेडी टू बी यूज्ड बाय गॉड. जैसे आप हमको यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ वहाँ कहीं पर भी डालो, वी आर रेडी. एंड कुछ भी नहीं पता था. वी जस्ट सेड कि हम एक स्टेप लेके जाएंगे. एंड एक बाइबल वर्स मैंने लिख के रखी थी तब, तो अभी मुझे याद आ गई. और वो है एक्लेसियास्टिस, बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस से, कि कैस्ट योर ब्रेड अपॉन द वाटर्स एंड इन ड्यू सीजन इट विल कम बैक टू यू. मतलब अपनी रोटी जल पे डाल और नियुक्त समय पे वो तुम्हें वापस दी जाएगी. और ऐसे ही हुआ. हमारी रोटी मतलब वॉट एवर वॉज प्रेशियस टू अस हमने डाला, और आपकी मसीही मोहब्बत और दुआ के थ्रू जो हमें वापस मिलती गई, विशेस जो वापस मिलती गई, it's amazing. I cannot thank God enough for you, and I ask that God richly blesses you in all that you do. Bless you. Amen. मैं चाहूँगा कि आप पाँव के बल खड़े हो जाएं. तो अपना हाथ शशि और सावरी की तरफ बढ़ाइएगा कि हम मिलके इन दोनों के लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का पवित्र हाथ, सामर्थी हाथ इन दोनों पर हो, कि ये यीशु के लहू में छुप कर जाएं यहाँ से और यीशु इनको इस्तेमाल करे. और खुदावन जो हैं जिसने बुलाया है वो वफादार है, विश्वास योग्य है. वो कभी हमें बीच रास्ते नहीं छोड़ता है. जो उसने शुरू किया है उसको मुकम्मल करता है, पूरा करता है. कि उसका नाम का एक टाइटल है अल्फ़ा एंड ओमेगा, शुरू करने वाला और उसको संपूर्ण करने वाला. तो उसके हाथ में हमारी सारी बातें हैं, हमारी मुश्किलें, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे जितने भी ज़िंदगी के फेसेस हैं उसके हाथ में, वो कंप्लीट करना जानता है. फादर, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, द सन ऑफ द लिविंग गॉड, we thank you for all that you have been doing in our lives. Lord, we lack nothing because you are a shepherd, a good shepherd who know how to provide for us, who know how to take care of his sheep. खुदावन हम जानते कि आप हमारे अच्छा गडरिया है, हमारा चराहा है, हमारी देखभाल करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमें संभालता, हमारे सारी ज़रूरतों को पूरा करता है. खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ भाई शशि के लिए, सावरी के लिए. खुदावन ये दोनों तेरे लहू में छुप जाएं. यहाँ से जब जाते हैं तो खुदावन आप इनके कदमों को आप खुदावन इनकी रहनुमाई करें, अगुवाई करें, सिखाएं, याद दिलाएं, प्रोटेक्ट करें. इनको तेरे लहू में हम छुपा देते हैं खुदावन. यहाँ से खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक के नाम से इन दोनों को खुदावन हम ब्लेस करते हैं, आशीष करते हैं. खुदावन यीशु के नाम से हम खुदावन इनको कमीशन करके भेजते हैं. खुदावन यहाँ से जाएं तो खुदावन इनका मसा बढ़ जाए, खुदावन यीशु की सामर्थ बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए, इनकी हिम्मत दिलेरी जो है खुदावन की दिलेरी में तब्दील हो जाए. यीशु इनको छुए right now in the name of Jesus Christ. We bless them with your blessing, we cover them with your coverage, we bring them into the throne room of grace of God right now in Jesus name. Wherever they go, as they share, as they speak, as they talk to people, God, let the Spirit of the Lord take over.
उस कन्वर्सेशन को टेक ओवर, इनकी बातचीत में खुदावन यीशु का मस्सा हो, इनके चलने फिरने में यीशु का मस्सा हो। खुदावन इनको इस्तेमाल कर, संभाल ले, रक्षा कर, हिफाजत कर। यीशु के पाक फरिश्तों का बाड़ा इनके चारों तरफ लग जाए। हम इनको खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपा के नाम से यहाँ से रिलीज करते हैं, ब्लेस करते हैं और खुदावन यीशु के काम के लिए खुदावन भेजते हैं। खुदावन को ले, इस्तेमाल करो। खुदावन तेरी बादशाहत बढ़ने पाए। खुदावन सिस्टर सावरी को भी तेरे लहू में छुपाते हैं, शशि को तेरे लहू में छुपाते हैं कि दोनों खुदावन यीशु के नाम को जला देने के लिए इस्तेमाल हो। ब्लेस करे खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूपा के नाम से पूरी कलीसिया के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ मिलकर इनको ब्लेस करते हैं, तेरे लहू में छुपा देते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, हालेलुया। गिव ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया, आमेन, आमेन। बेनेडिक्शन से पहले एक अनाउंसमेंट है, शशि प्लीज आप। We have an announcement before the benediction. अंतिम दुआ से पहले एक इश्तिहार है। Thank you, Jesus, for your presence, Lord. Hallelujah. आपने बताना है सिस्टर। हाँ, आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले यहाँ पर सिस्टर बानो, ब्रदर सैम दीनदयाल आए थे। You must remember brother Sam Deendayal and his wife sister Bano had come. We had acknowledged them. उनकी जो अभी मैसेज आई है कि बानो सिस्टर के जो ब्रदर हैं पाकिस्तान में, Yes. भाई, the brother of sister बानो, आज सुबह वो गुजर गए हैं और उन पूरी फैमिली को आप दुआओं में याद रखना। Right. और हम भी उनके लिए दुआ कर रहे हैं। They are part of us, वो हमारे हिस्सा हैं। बस जर्सी वो मूव हो गया इसलिए वो दूसरे चर्च जाते हैं वहाँ पर, लेकिन जब भी इस तरफ आते हैं या कोई इंपॉर्टेंट बात होती है तो वो यहीं मौजूद होते हैं। Whenever they are able to come or if there's something important they are with us. They just in another church in Jersey because they moved as a family from New York. तो बेनेडिक्शन से पहले तुरंत उनके लिए हम दुआ करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप दुआ में याद रखें। फादर इन जीसस नेम, हम बहन बानों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए जो खुदावन इस समय गमज़दा शौकमय हालात में हैं, तो खुदावन तेरी तसल्ली की, तेरे सांत्वना की ज़रूरत है। आप संभालें, आप अपना हाथ शांति का, तसल्ली का, रहम व फजल का बढ़ाएं और खुदावन पूरे ख़ानदान को संभाले रखें। और खुदावन इस समय अपना वचन के साथ उनको आप अपने खुदावन पंखों की आड़ में ले लीजिए। खुदावन ब्लेस करें, यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं, सुपुर्द करते हैं। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगति से भागिता हम सब के साथ, तमाम दुनिया में खुदावन की कलीसिया संत और संगतों और हम सब के साथ आज से लेके हमेशा तक बनी रहे। Amen. Praise God. Church, God bless you.